इसलिए الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. کچھ باتیں جو ہمیں الگ سے جاننی ضروری تھیں، ہم وہ انشاءاللہ جانیں گے. جیسے کہ نماز کے اوقات کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کن اوقات میں نماز پڑھنی چاہیے، یہ چیزیں انشاءاللہ. پہلی، فجر کا وقت کب سے کب تک شروع ہوتا ہے؟ فجر کا وقت فجر صادق طلوع ہونے کے بعد سے سورج طلوع ہونے تک، ٹھیک ہے. فجر صادق فجر صادق ہوتا ہے جب ہلکی ہلکی جو ہے سفیدی نظر آنے لگتی ہے آسمان میں، تو اس موقع پر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. ایک کام کیجئے، میں 2 فوٹوز بھیج رہا ہوں، جو بھی طالبہ ہیں وہ ذرا ان دونوں تصاویر کو اس میں لگائیے گا، ٹھیک ہے. یہ ہے نماز کے اوقات، ٹھیک ہے. جو نماز کے اوقات ہیں یہ ہے. یہ پہلا وقت ہے فجر، من طلوع الفجر الصادق، اسے فجر صادق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. فجر صادق کے مطلب رات کے آخری حصے میں ایک سفید روشنی کا پھیلنا. جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو اسے لائٹ سفید روشنی آتی ہے. یہ ان کو نظر آئے گی جو گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں، شہر میں رہنے والوں کے لیے یہ مشکل ہے. تو یہ فجر کا وقت ہے، یہ فجر کا وقت ہے. کب سے کب تک ہے؟ من طلوع الفجر الصادق، فجر صادق سے لے کر الی طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے تک، ٹھیک ہے. سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک بھی اگر کسی کو فجر کی نماز مل جائے تو اس کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. سورج طلوع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سورج جب نکل جاتا ہے، اس سے پہلے، نکلنے سے پہلے تک. اگر نکل گیا تو پھر اس کی نماز قضا ہو جائے گی. تو نکلنے سے پہلے پہلے تک اگر کسی نے نماز پڑھ لی، فجر کی ایک رکعت بھی اس کو مل گئی، اس کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. اب اس کے بعد نیچے آ رہی ہیں، یہ فجر کا وقت تھا. اب ظہر کا وقت ہے، من زوال الشمس، سورج کے زوال کے بعد سے. زوال کہتے کس کو ہے؟ زوال کا مطلب ہوتا ہے کہ سورج کا آسمان کے بیچوں بیچ سے مغرب کی طرف ڈھل جانا، یعنی مغرب جہاں سورج غروب ہوتا ہے نا اس طرف ڈھلنے لگ جانا. یعنی 12 بجے کے آس پاس آپ سر اٹھا کر دیکھیے تو سورج آپ کے سر پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب سورج ڈھلنے لگے، زوال یعنی ڈوبنے کی طرف وہ جانے لگے، اپنے سر کے اوپر اب سورج نہیں ہے، ذرا سا جو ہٹ گیا، من زوال الشمس، تب سے سٹارٹ ہوتا ہے. آپ کسی لکڑی کو لے کر رکھیں، اگر سورج بالکل سر پر ہے تو اس کا سایہ نہیں پڑتا ہے، کہیں بھی سایہ نہیں رہتا ہے، بالکل سینٹر رہتا ہے. سورج جیسے ہی ذرا ڈھلتا ہے یہ سایہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو سایہ نظر آ رہا ہے یہ ظہر کا، وہ نہیں، اس سے پہلے والا، یہ جو سایہ نظر آ رہا ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ زوال شمس. یہاں سے لے کر ظہر کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے الى ان يصير ظل كل شيء مثله بعد في الزوال،
यानी यहां से लेकर यहां तक हर चीज का साया उसके बराबर होने तक। मतलब समझ में आ रहा है आपको? यानी सूरज ढला, जरा सा ढल गया सूरज, अब हर चीज का साया, ये जो साया है ना, इसका साया इसके बराबर होने तक जितना होता है, उतने टाइम तक जोहर का वक्त होता है। जैसे ही ये साया बढ़ने लगेगा, यानी जो चीज आपने मिसाल के तौर पर एक लकड़ी रखी, लकड़ी का साया उसके बराबर होने तक टाइम है, आप जोहर की नमाज पढ़ सकते हैं। जैसे ही वो लकड़ी का जितना साया उससे ज्यादा होने लगे, तो असर का वक्त शुरू हो जाता है। समझ में आया ना? जोहर का वक्त शुरू होगा जवाले शम्स से। जवाले शम्स का मतलब होता है सर पर जो सूरज रहता है उसको जरा सा ढलकने के बाद से लेकर हर एक चीज का साया उसके बराबर होने तक। उसके बाद लगाइए असर का। जी, ये असर का वक्त है। मिन खुरूजी वक्त जोहर, ठीक है। जैसे ही साया, एक लकड़ी है, उसका साया उसके मिस्ल है, उसके बराबर है, वहां तक तो जोहर का वक्त है। जैसे ही साया उससे बढ़ने लग जाए, जोहर का वक्त खत्म होकर असर का वक्त शुरू हो जाता है। समझ में आया आपको? ये देखिए, इसमें जो दो निशान लगे हुए हैं, एक निशान है फिर जवाल, यानी जवाल के बाद। हम जवाल के बाद से चेक करेंगे। शुरू में जो साया था ना, थोड़ा सा साया था, तो वहां से हमारा जोहर का वक्त शुरू हो रहा था, तो उतना हम निकाल देंगे उसका। उसके आगे से जो लकड़ी है, उतनी होनी चाहिए जितनी लकड़ी हमने रखी है। जो भी रखा, जो भी चीज रखी है, उसका साया उसके बराबर हो। जैसे 1 मीटर की लकड़ी है, तो 1 मीटर का साया पूरा हो रहा है, ठीक है। तो फिर क्या हम समझेंगे, ये जवाल है। जैसे ही 1 मीटर से ज्यादा का साया पड़ने लग जाए, ठीक है, 1 मीटर की लकड़ी का साया 1 मीटर के बजाय उससे ज्यादा पड़ने लग जाए, हम कहेंगे अब असर के वक्त में हम दाखिल हो गए। समझ में आ रहा ना? जोहर का वक्त जवाल से शुरू होगा, और जवाल जैसे ही होता है, आप लकड़ी रखें, जरा सा जो है साया एक तरफ मुड़ता है, उतना साया आप माइनस कर लें, और उसके आगे से लेकर 1 मीटर तक जो लकड़ी है, उतना साया अगर पड़ रहा हो, तो हम कहेंगे ये जोहर का वक्त, ये जोहर का आखिरी वक्त है। जैसे ही 1 मीटर से ज्यादा साया पड़ने लग जाए, 1 मीटर की अगर लकड़ी हो, तो कोई भी चीज हो, कोई भी साया हो, मैं मिसाल देकर आपको समझा रहा हूं, उससे ज्यादा जब पड़ने लग जाए, तो हम कहेंगे अब असर का वक्त स्टार्ट होने लग गया है, असर के वक्त में हम दाखिल हो गए। कब तक है असर का वक्त? इला इस्फिरार शम्स, सूरज के जर्द होने तक। आप देखिए, सूरज जो है जैसे ही गुरूब होने लगता है, जरा पीला पड़ने लगता है, ठीक है। सूरज जब गुरूब होने लगता है तो पीला पड़ने लगता है, वो असर का वक्त है, ठीक है। बस यही है, इसमें तीसरा है और एक है, मगरिब भी है ना। अब आप ये सवाल पूछेंगे, शेख सूरज के पीला पड़ने तक जो है असर का वक्त है, तो क्या सूरज के गुरूब होने से पहले पहले तक अगर कोई शख्स नमाज पढ़ ले तो उसकी नमाज होगी? हाँ, हो जाएगी। वो अफजल वक्त है, ठीक है। उसके बाद भी वक्त है असर का, यहां तक के सूरज गुरूब हो जाए। गुरूब होने से पहले पहले तक अगर किसी को नमाज मिल गई, तो उसकी असर मानी जाएगी, कजा नहीं होगी उसकी, ठीक है, गुरूब होने से पहले। और मगरिब का वक्त है मिन गुरूब शम्स, सूरज के गुरूब होने के बाद से, इला अन यगीब अशफक़ल अहमर। ये शफ़क़ अहमर क्या है? हुवा ज़ौउल अहमर अल्लज़ी यज़हरु फी जिहतिल गर्ब बाद गुरूब शम्स। ये लाल रोशनी है जो मगरिब की तरफ, यानी मगरिब के साइड में जाहिर होती है सूरज के गुरूब होने के बाद। आपने कभी देखा होगा, जब सूरज गुरूब होता है ना, तो सूरज गुरूब होने के बाद अभी उजाला रहता है,
ठीक है, उजाला आपको नजर आता है, सूरज गुरूब हो गया लेकिन उजाला है, तो ये टाइम है मगरिब का। ठीक है, मगरिब का वक्त शुरू हो गया, सूरज जैसे ही गुरूब होगा मगरिब का टाइम शुरू हो गया। कब तक मगरिब का टाइम रहेगा? लास्ट टाइम कब तक है? जब आसमान के अंदर जो लाली नजर आती है, ये फोटो में दिख रहा है आपको, सेकंड फोटो में जो लाली दिख रही है लाल लाल, ये लाली जब खत्म हो जाएगी मगरिब का वक्त भी खत्म हो जाएगा। और ये वक्त ज्यादा देर तक नहीं रहता है, मगरिब की नमाज पढ़ने के बमुश्किल जो है एक 10 मिनट के अंदर जो है ये लाली खत्म हो जाती है। तो मगरिब का वक्त शुरू होगा सूरज के गुरूब होने से। लाली, जो लाल किस्म की लाली होती है, देखिए ऐसे लाली रहती है, आसमान में नजर आती है। अगर कोई देहात वगैरह में रहता है तो उसको अच्छी तरीके से नजर आती है, या फिर कोई क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, तो अगर वो चढ़ कर देखेंगे ऊपर तो उन्हें नजर आएगा कि आसमान में भी लाली नजर आ रही है। थोड़ी देर वहां खड़े रहेंगे, वो अपने आप वो लाली चली जाती है। ठीक है, वो लाली खत्म। वो जब तक वो लाल लाल बाकी है ना, लाल है ऑरेंज है जो भी कहें आप उसको, जो वो लाली बाकी है तब तक मगरिब का वक्त है। जैसे ही वो खत्म हो गई मगरिब का वक्त भी खत्म हो गया। ये बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत वक्त बहुत कम। यानी मान के चलिए आपके थोड़ा सा वक्त रहता है नमाज पढ़ने के बाद, बमुश्किल जो है आपको मिलेगा कि ये वक्त ज्यादा होगा। ठीक है, वरना वक्त बड़ा कम होता है। ये है नमाज के ताल्लुक से मैंने आपको बात चीजें जो बताई थी। ठीक है, अब इंशाअल्लाह इसके बाद हम जो बात पढ़ने वाले हैं वो है नमाज के अरकान कितने हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, औकात क्या है, मगरिब का वक्त क्या है, और जोहर का वक्त क्या है, असर का वक्त क्या है, ठीक है, फजर का वक्त क्या है। अब इसके बाद जो अहम मसला हम और आप सीखने वाले हैं वो मसला है नमाज के अरकान और वाजिबात। ठीक है, नमाज के अरकान और वाजिबात मैं इंशाल्लाह इसकी एक लिखा हुआ है, तो मैं इसको जो है आपको एक फोटो इसकी भेजता हूँ। अगर इसको स्क्रीन पर भी लगा लेंगे इंशाल्लाह तो आसानी हो जाएगी। चलिए, मैं इसको भेज रहा हूँ, स्क्रीन पर लगा दीजिएगा, और साथ में इंशाल्लाह मैं पढ़ाता भी रहूंगा, आपको सहूलत रहेगी। नमाज के अरकान जो है कितने हैं? टोटल नमाज के अरकान 14 हैं। कितने हैं? 14। ठीक है, मैं भेज दिया हूँ, इसे स्क्रीन पर लगा दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है नमाज के अरकान। ठीक है, नमाज के अरकान टोटल कितने हैं? 14 है, 14 है। इसको देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको ये फोटो मिल जाएगी, सारे तालिबात को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, वो नमाज के औकात भी और ये अरकान वगैरह भी। नमाज के अरकान 14 हैं। अरकान मतलब आप समझ चुके हैं, मैं आपको इससे पहले बता दिया हूं कि अगर कोई भी चीज, कोई एक रुकन भी जानबूझकर हम छोड़ेंगे तो नमाज बातिल हो जाएगी, नमाज ही नहीं होगी अगर जानबूझकर छोड़ेंगे। और अगर भूल कर छूट जाए तो हम उसे दोबारा दोहरा लेंगे। ठीक है, नमाज के अरकान टोटल 14 है। पहला है कयाम। ठीक है, कयाम हम ये पढ़ चुके हैं, बस ऐसा है कि इसको पॉइंट्स में हम नहीं पढ़े, ये पढ़ लिए हैं, पहले आ चुका है ये सब किताब में, बस पॉइंट्स हम दे रहा हूं ताकि सहूलत रहे आप सबको। पहला क्या है? कयाम है, यानी ताकत तो हो तो खड़े होकर नमाज पढ़ना। ठीक है, कयाम, अगर ताकत है तो। दूसरा क्या है? तकबीर तहरीमा, अल्लाह अकबर कहना, ये रुकन है। तीसरा क्या है? हर रिकात में सूरह फातिहा पढ़ना, यह भी रुकन है। चौथा क्या है? रुकू करना। पांचवा क्या है? रुकू से सर उठाकर सीधे खड़े होना। ये सारे अरकान गुफ्तगू हो रही है अरकान की, इनमें से कोई एक चीज भी अगर जानबूझकर कोई छोड़ता है तो उसकी नमाज बातिल हो जाती है। तो रुकू से सर उठाकर सीधे खड़े होना, ये भी रुकन है। ये रुकन लोग छोड़ देते हैं, सर उठाकर सीधे खड़े नहीं होते, सीधा रुकू से रुकू में सजदे में चले जाते हैं, बचना चाहिए।
छठी चीज है 7 आज़ा पर सजदा करना। 7 आज़ा कौन से हैं जो बताया गया? पेशानी, नाक एक हो गया, दोनों हाथ, दोनों पांव, घुटने और दोनों पांव की उंगलियां, टोटल 7 हो गई। आखिरी तशहुद के लिए बैठना, पढ़ चुके हैं हम, ये भी एक रुक्न है। आखिरी तशहुद में अत्तहियात पढ़ना, ठीक है, वाजिब है वैसे, लेकिन इसमें रुकन दिया गया है, ठीक है, लेकिन जरूरी है, लाजिम है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से ये वाजिबात में से आता है, साहिब किताब ने वाजिबात को भी इसमें रुकन में दाखिल कर दिया। ये 2 पॉइंट्स आप निकाल लें, आखिरी तशहुद में तहियात पढ़ना और आखिरी तशहुद में दरूद पढ़ना, ये वाजिबात में से है, ठीक है, वाजिब है। और उसके बाद 2 सलाम फेरना, नीचे आ जाए, 2 सलाम फेरना, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, 2 सलाम जो फेरा जाता है वो है। और तमाम अरकान को इत्मीनान से करना, ये भी रुकन में से आता है, ठीक है। तमाम अरकान को तरतीब से अदा करना, ये भी रुकन है। इत्मीनान से करने का क्या मतलब? हर चीज में ठहर ठहर कर अदा करना, क्योंकि नमाज ही नहीं होगी। जैसे एक शख्स आया तो अल्लाह के नबी ने कहा, इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज अदा नहीं की, क्योंकि वो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहे थे। तो नमाज जल्दबाजी से अदा नहीं होती, तमाम अरकान को इत्मीनान से अदा करना होता है, और तमाम अरकान को तरतीब से अदा करना है, ये रुकन है। यानी मिसाल के तौर पर कोई कहे कि नहीं मैं पहले तशहुद से नमाज शुरू करूंगा, तशहुद पढ़ूंगा, फिर रुकू करूंगा, फिर सजदा करूंगा, फिर कयाम करूंगा, या कोई शख्स नमाज पढ़े, अल्लाह अकबर कहकर कयाम करे, फिर सजदे में जाए, फिर रुकू में जाए, नमाज नहीं होगी उसकी। हर रुकन जो भी जिक्र किया गया वो तरतीब के साथ होना चाहिए, ठीक है। नीचे लिखा गया है, इन अरकान में से किसी एक रुकन को आमदन छोड़ देने से नमाज बातिल हो जाती है। आमदन यानी जानबूझकर, अगर कोई शख्स इन अरकान में से कोई एक रुकन छोड़ दे तो नमाज क्या होगी? बातिल। अगर सहवन गलती से छूट जाए तो याद आने के बाद उसको अदा करके सजदे सहू कर लेना चाहिए। यानी अगर गलती से छूट जाए, यानी भूल गए आप, तो जब आपको याद आए आप दोबारा उसको दोहरा ले, यानी वो रिकात को दोहरा ले और सजदे सहू अखीर में कर ले, क्योंकि आपसे नमाज में एक गलती हुई है। उसके नतीजे में जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रिकात नमाज पढ़कर बैठ गए, सलाम फेर लिया, 2 रिकात नहीं पढ़ी थी, तो सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी क्या हम पर नमाज कम हुई? तो अल्लाह के नबी ने कहा नहीं। तो सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल आपने सिर्फ 2 ही रिकात नमाज पढ़ाई है। तो अल्लाह के नबी ने 2 रिकात और पढ़ाई और सजदे सहू किया। तो मालूम ये चला, कोई रुकन छूटे, याद आ जाए, उसे अदा कर ले और साथ में सजदे सहू करें, ये है नमाज के अरकान, ठीक है। अब नीचे आ जाए, नमाज के वाजिबात है। नमाज के वाजिबात तकरीबन 8 हैं। और वाजिबात के कौन से हैं? पहला, तकबीर तहरीमा के अलावा तमाम तकबीरात का कहना, ये वाजिबात में से शुमार होता है। और दूसरा है समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना, इमाम और मुनफरिद दोनों के लिए जरूरी है, ठीक है। ये वाजिबात में से अगर कोई भूल जाए समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना, तो आखिर में क्या करेगा? सजदे सहू कर लेगा। वाजिबात 8 है, तकबीर तहरीमा है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा है, रब्बना वलकल हम्द कहना, ठीक है। इमाम, मुनफरिद और मुक्तदी हर एक को कहना जरूरी है। 2 चीजें, समी अल्लाहु लिमन हमिदा भी है, रब्बना वलकल हम्द भी है। रुकू की दुआ पढ़ना ये वाजिब है, हमने पढ़ा ना, रुकू की दुआ वाजिब है। सजदे की दुआ पढ़ना ये भी वाजिब है। 2 सजदों के दरमियान दुआ पढ़ना ये भी वाजिब है। पहले तशहुद के लिए बैठना ये भी वाजिब है। पहले तशहुद में अत्तहियात पढ़ना ये भी वाजिब है। और आखिरी तशहुद में अत्तहियात और दरूद पढ़ना ये भी वाजिब है। 8 के बजाय 9 दाखिल करना इसमें, ठीक है। अगर नीचे पढ़िए,
اگر ان واجبات میں سے ایک واجب بھی عمدن چھوڑ دے نماز باطل ہو جائے گی. اگر سہون یعنی غلطی سے چھوٹ جائے تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی. یعنی جتنی چیزیں اس میں ذکر کی گئیں ان میں سے ایک بھی چیز اگر آپ سے غلطی سے چھوٹ جائے تو آپ کو دوبارہ نماز دہرانی نہیں ہے. یعنی وہ رکعت یا جو چیز چھوٹی ہے اس کو دوبارہ دہرانا نہیں ہے جیسے ارکان میں ہوتا ہے، بلکہ اخیر میں آپ صرف سجدے سہو کر لیں گے، انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. یہ نماز کے ارکان ہیں جو آپ کو میں نے بتائے ہیں. ٹھیک ہے، تو نماز کے واجبات ہیں تو سمجھ گئے آپ. نماز کے واجبات، نماز کے ارکان، اور پھر اس کے بعد سنتیں ہیں. اس کی بھی فوٹو بھیجا ہوں، وہ بھی لگا لیں. یہ دو چیزیں یاد کر لیں آپ، اس کو انشاءاللہ سہولت ہو جائے گی. وہی جو بک میں ہے وہی ہے، بس اس کے اندر پوائنٹس کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو سہولت ہو جائے گی یاد کرنے میں آپ کو. سنتوں کا ذکر نہیں ہے، یہ میں باب الفائدہ آپ کو ذکر کر رہا ہوں. امتحان صرف اور صرف جو کتاب میں موجود ہے اسی میں ہوگا، الگ سے کسی چیز کا امتحان نہیں ہوگا. لیکن جو چیزیں ابھی بیان کر رہا ہوں یہ آپ کے لیے فائدے مند ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے نا آسان نماز نبوی، صرف اسی میں امتحان ہوگا. یہ سنتیں ہیں. فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے. اور یہ 12 رکعات ہیں. کتنی رکعات ہیں؟ 12 سنت موقدہ. فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 4 رکعت، اور عشاء کے بعد 2 رکعت. ٹھیک ہے، ان 12 رکعتوں کو سنن رواتب بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سنن رواتب. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کو فرماتے سنا، جو مسلمان اللہ کی خاطر ہر دن فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت سنت پڑھتا ہے، یہ 12 رکعت یہ سنت موقعہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. تو سنن رواتب پڑھنا چاہیے، 12 رکعت سنتیں ادا کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں، ٹھیک ہے، سنتوں کا ذکر کیا گیا جیسے عصر سے پہلے 4 رکعت، یہ الگ فضیلت ہے. ٹھیک ہے، یہ نوافل میں آتی ہیں اور یہ سنتوں میں آتی ہیں، لیکن سنت موقدہ صرف اتنے ہی ہیں. اگر کوئی شخص اس کی حفاظت کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کو جنت میں ایک گھر بنا دے گا. اتنی سنتیں آپ کو پڑھنی ہو. اس کے علاوہ جو سنتیں ذکر کی جائے 17 رکعتیں عشاء کے بعد پڑھنی ہیں، اس کے بعد اتنی رکعت، یہ سب بے بنیاد ہیں. صرف سنت موقدہ پڑھنے کافی ہے. اس کے علاوہ نوافل آپ کتنی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں. ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ بعض مسائل تھے جو آپ کو میں نے بتلائے ہیں. اللہ سے دعا ہے جو باتیں بتائی گئی ہیں ہمیں اس پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ہم پڑھے ہیں اس کی جو ہے فوٹوز آپ گروپ میں شیئر کر دیں تاکہ سارے طالبات اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ختم ہو گیا بس یہاں تک لاسٹ.